सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭੱਠੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ +2 ਪਾਸ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਸੋ 2 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ +2 ਪਾਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ +2 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਗਈ, ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ। मेरा नाम प्रज्ञा गुप्ता है। मैं गांधी फेलो हूँ पिरामिल फाउंडेशन के अंदर। तो इसमें हमको 1 महीने के लिए गांव में भेजा जाता है, जिसमें हमें प्रॉब्लम देखनी रहती है और अगर हम उस पर कोई सोल्यूशन निकाल सके तो उस सोल्यूशन के साथ जाना रहता है और उसी के दौरान सीखना रहता है बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे कि मैं जलालाबाद ईस्ट गांव में थी और यहाँ पे आने के बाद सर्वे किया तो पता चला कि जलालाबाद ईस्ट भट्टों के लिए बहुत फेमस है पूरे पंजाब में। यहाँ पे कम से कम 40 भट्टे हैं और सारे यहाँ पे माइग्रेंट लेबर आते हैं, जैसे कि बिहार से, यूपी से, झारखंड से सारे लेबर आते हैं जो 7-8 महीने के लिए यहाँ काम करते हैं और फिर वापस चल जाते हैं। तो जो लेबर आते हैं उनके साथ वो अपनी फैमिली लेके आते हैं, अपने बच्चे लेके आते हैं, वो भी 7-8 महीने भट्टों पे रहते हैं, उसके बाद वो वापस अपने गांव चल जाते हैं, कहीं और चल जाते हैं, तो माइग्रेट हो जाते हैं बार बार। तो ये जो बच्चे बार बार ट्रैवल करते रहते हैं, बार बार माइग्रेट होते रहते हैं,
इनकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि एक जगह रह नहीं पाते हैं और इसलिए इनके लिए शिक्षा लेने स्कूल वगैरह में भी नहीं जा पाते हैं इसी के कारण। तो ये देखते हुए मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा करीबी से काम किया है। मैंने 1 साल मैं टीचर भी रही हूँ प्राइमरी स्कूल की, और मैं खुद भी एक ऐसी बच्ची थी जो पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं थी, पर मेरे को अच्छे टीचर मिले लाइफ में, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। इससे मेरे को पढ़ाई की महत्वता तो जैसे हम सबको ही पता है, पर मैं उससे काफी ज्यादा कनेक्ट थी इमोशनली भी और बच्चों से भी। तो इन बच्चों के लिए मेरे को पढ़ाने का इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा कि पढ़ाना है मुझे। पर अगर मैं पढ़ाती तो मैं 1 महीने बाद जा रही थी, उसके बाद कौन पढ़ाता इन बच्चों को? जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं पढ़ा रही हूँ, पर उसके बाद कौन देखेगा इनको? और वो ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाता। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगा, सर्वे के दौरान मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। मैंने ढूंढा कि कोई पढ़ा सके इन बच्चों को मेरे बाद, मेरे साथ, या मेरे से कोऑर्डिनेट करके पढ़ा सके इन बच्चों को। तो मेरे को मोनिका मिली, जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है इस भट्टे पे, और काफी अच्छे से उनका सपोर्ट रहा है मुझे इस पूरे प्रोग्राम में। तो मैंने उनसे बात किया कि वो पढ़ा सकती हैं क्या। उनका पढ़ाने में इंटरेस्ट तो था, पर वो भी एक काम करती है, लेबर है यहाँ पे, तो वो अपने घंटे देती है और उनके घंटे भी उनके इनकम जनरेट करे वो, क्योंकि जैसे भट्टे पे ईंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो इसी के साथ हम 4 ईंटों की क्लास के कॉन्सेप्ट से आए कि ये जो लेबर है, जो मोनिका है, जो पढ़ाना चाहती है, उसको कुछ रिटर्न में क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे सारे ईंटें भट्टों पे काम करने वाले परिवार हैं, और बच्चे भी कहीं ना कहीं साथ में सब मदद करते रहते हैं, कहीं ना कहीं इसी के साथ पेरेंट्स की मदद हो जाती है। तो हम 4 ईंटों के कॉन्सेप्ट से आए कि अगर एक परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए रोज 4 ईंटें निकाल रहा है, तो उनके रेट के हिसाब से 4 ईंटों का 2 रुपए बनता है। तो हम 2 रुपए एक बच्चे का क्लास में लेते हैं, जिसमें हम 1 से 1.5 घंटे उनको पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के साथ साथ हम यही नहीं उनको, जैसे ये जो बच्चे हैं ना, ये समाज से कहीं ना कहीं बाहर चले गए, आइसोलेट हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं समाज में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये लोग जाते रहते हैं। तो ये एक तरीके से हम उनको समाज में इंक्लूड कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको और जागरूक नागरिक बना रहे हैं। क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा है वो एक जागरूक नागरिक आगे जाके बनता है, ज्यादा समझदार बनता है, वो खुद के लिए खड़ा हो सकता है, उस काबिल बना रहे हैं। बच्चे देते हैं 1 दिन का पैसा, वो मोनिका के लिए है। मोनिका यहाँ पे काम करती है, लेबर है। तो मैं अगर चली भी जाती हूँ तो मोनिका खुद का अपना ट्यूशन खोल सकती है, खुद का एक पढ़ाने के लिए क्लास खोल सकती है। और ये बच्चे, ये पेरेंट्स जो माता पिता है, ये अपने बच्चों को इसके पास भेजेंगे, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है, ये 12वीं पास इसने किया हुआ है। तो एक इसके लिए भी इनकम जनरेशन हो गया है, और बच्चों के पढ़ाई का जो अधिकार है उसको भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो जैसे मोनिका इतने टाइम से, अभी 15 दिन हो गए अपनी क्लास को, तो अभी जैसे वैसे तो तुम घंटों पे काम करती थी, ईंटें वीटे बनाती थी, पर अभी तुमको क्लास में बच्चों के अपने आसपास के जो बच्चे उनको पढ़ा के तुम्हें कैसा लग रहा है? मतलब मुझे ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेटर फील हो रहा है कि मैं भी किसी काबिल, मतलब बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो इसलिए मेरा अलग ही जनरेशन से हुआ है बच्चों को पढ़ाने में, और ये बच्चे काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में। मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, अपने मम्मी पापा का सपोर्ट करूँ, लेकिन ये काम ऐसा है कि ऐसा मिल नहीं पाता, ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए टाइम नहीं लगता, क्योंकि पूरे दिन हो जाते हैं काम करते हैं। मैंने अभी क्लास खोली है, इससे ना मुझे थोड़ी उम्मीद लग रही है कि मैं आगे फ्यूचर में अपना जो मेरा सपना था वो पूरा कर सकती हूँ, इनके थ्रू आगे तक जा सकती हूँ। तुम क्यों मोटिवेटेड रहती हो कि तुमको आज जाना है, क्लास में पढ़ाना है? तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है पढ़ाते समय? तुम क्या
महसूस करती हो? मैं ना इसलिए क्योंकि बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और उनके साथ मुझे भी अच्छा लग रहा है पढ़ाती है ना, क्योंकि मैं ना पहले से सोचती थी, ये मेरा सपना था कि मैं भी बच्चों को पढ़ाऊँ, टीचर बनूँ। तो इसलिए ये मेरा सपना साकार होता नजर आ रहा है, इसलिए मैं 2 घंटे से भी इसलिए निकाल रही हूँ, इसलिए आ रही हूँ, इसलिए बच्चों को पढ़ा रही हूँ। से गांव से हूँ और मैं स्कूल में जाती थी गांव ही। मैं 11 साल की हूँ, बहुत कुछ सीख गई हो। मोनिका दीदी ने हमें जोड़ घटा सिखाया है, संडे मंडे सिखाया है, सब कुछ सिखाया है। हम हिंदी नहीं आती थी, दीदी ने हिंदी भी सिखाई। मेरा नाम राजकुमार है। मैं इधर जो मुझे कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, कभी इस भट्टे से कभी उस भट्टे पे हम इधर उधर जाते रहते हैं। सर इधर जो क्लास खुली है उधर हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर मोनिका दीदी ने हमको 1 2 सिखाया और सर हमको हिंदी भी नहीं आती थी पहले पढ़ने, वो भी सिखाया। सर हमको पहले पहाड़े नहीं आते थे, पहाड़े सिखाए। खेल कराती है मोनिका दीदी और सर खेल कराकर बाद गीत भी सिखाती है। टू 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 आजा रे आजा, बाजा बाजा जा, बाजा बाजा जा, पी पी पी, जाऊंगा बोले टू 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 टू, आजा रे आजा गिटार, आजा रे आजा ढोलक बजा जा, ढोलक बजा जा, डम डम डम, जाऊंगा बोले टू टू। लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा, लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा, लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा, लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा, ऐसे खीर बनाए, ऐसे खीर बनाए, ऐसे खीर बनाए, ऐसे खीर बनाए, कूद कूद के खाए, कूद कूद के खाए, लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा, लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा। पीरामल फाउंडेशन से डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लीड मोगा। मोगा एक एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पिछले 2 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। भारत के 27 स्टेट्स में तकरीबन 112 ज़िलों में हम नीति आयोग के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं और सभी 112 ज़िलों में कार्यरत हैं। जो आज हम प्रोग्राम देख रहे हैं ये एजुकेशन डोमेन के अंडर आता है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 5 डोमेन्स में काम किया जाता है, जो कि आपके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, एजुकेशन, लाइवलीहुड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर। मुझे लगता है जो प्रज्ञा ने यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किया है हट्ठों के बच्चों के लिए, ये सबसे एक्सक्लूडेड बच्चे होते हैं सोसाइटी के, जिस पे ना ही कभी समाज का कभी ध्यान गया है ना कभी सरकार का। मुझे लगता है बड़ा ही उम्दा काम किया जा रहा है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस भट्टे के मालिक जो कि प्रताप गिल जी हैं, जिन्होंने सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई है। साथ ही में वॉलंटियर को और प्रज्ञा को जिस तरीके का इन्होंने प्रोत्साहन दिया है, ये मुझे लगता है कि गाँव के जितने भी मोगा के भट्टे हैं उन लोगों को भी उनकी सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए उनको मदद करेगा। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है जी। काम में हमारे भी हेल्प भी थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती है आपके काम में। हाँ जी। ठीक है, तो आपको लगता नहीं कि हमें बच्चों की पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए? नहीं, हम तो बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है। अपने बच्चों को यहाँ भी पढ़ाते हैं। जो गांव से आते हैं तो फिर हमें यहाँ से जो स्कूल खुला है ये इसमें हमारी हेल्प हो जाती है। अच्छा, किस तरीके से हेल्प हो जाती है आपकी? जैसे बच्चे पढ़ते हैं हमारे। ठीक है, तो अभी कितने बच्चे आ रहे हैं आप यहाँ पे? हमारे यहाँ से 28-30 बच्चे हैं जी। 28-30 बच्चे हैं। हाँ जी। जो कि स्कूल नहीं जा रहे थे यहाँ पे? जो कि स्कूल नहीं जा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दीदी जो टीचर लगी हुए हैं और जो पढ़ा रही हैं वो आप ही की यहीं से ही हैं? हाँ, वो हमारी लड़की है जी। अच्छा जी, ठीक है। मेरा नाम राहुल है जी और मैं यूपी कानपुर का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का स्कूल खुला है, जो कि इन सर जी की वजह से यहाँ पे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। और कि जैसे कि सर जी हम तो लाइफ में पढ़ नहीं पाए, तुम सोचे कि बच्चे पढ़े लिखे और नाम करें।